السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ امریکی فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈکشن کمپنی مارول اسٹوڈیوز کی اب تک کی ناکام ترین سمجھی جانے والی فلم کے سیکول کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مارول اسٹوڈیوز کی پروڈکشن میں بننے والی ایٹرنلز جیسے شائقین اور ناقدین کی جانب سے سب سے کم ریٹنگز ملی تھی۔ اس کے سیکول بنائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایٹرنلز 2 کی تیاریاں شروع ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ فلم کب ریلیز ہوگی، جبکہ مارول اسٹوڈیوز کی جانب سے فلم کے سیکول کی بھی واضح طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایٹرنلز کی ہدایت کار گلوئے شاید فلم کے سیکول میں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں۔ واضح رہے کہ ایٹرنلز نومبر 2021 میں سینما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی، لیکن یہ فلم مارول سنیمیٹک یونیورس کی اب تک کی بدترین فلم ہے، جبکہ اس فلم کی فلموں سے متعلق معلومات کا ایک آن لائن ڈیٹا بیس فراہم کرنے والی ویب سائٹ IMDb پر ناظرین نے 3.6 ریٹنگ دی ہے۔ بھارت کے معروف گلوکار 82 سال کی عمر میں ممبئی کے ایک اسپتال میں چل بسے۔ گلوکار بھوپندر سنگھ کی اہلیہ متالی سنگھ نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھوپندر سنگھ آنت کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھوپندر کو 10 روز قبل اسپتال میں لایا گیا تھا۔ ہمیں شبہ تھا کہ انہیں بڑی آنت میں انفیکشن کا مسئلہ ہے اور ہم اس حوالے سے طبی معائنہ کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں کووڈ-19 ہو گیا اور پیر کو ان کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وینٹیلیٹر پر منتقل کیے جانے کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ معروف امریکی گلوکارہ اور اداکارہ جینیفر لوپیز نے ہالی ووڈ اداکار بین ایفلیک سے شادی کر لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جینیفر اور بین 2001 میں ایک فلم کے سیٹ پر ملے تھے اور 2003 میں دونوں نے راہیں جدا کر لی تھی۔ تاہم اب جینیفر پکارے جانے والے اس جوڑے نے شادی کر لی ہے۔ یاد رہے کہ جینیفر کی یہ 4تھی شادی ہے۔ ان کی پہلی شادی 1997 میں اداکار اوجانی سے ہوئی تھی، تاہم 1998 میں دونوں کی طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جینیفر 2021 میں ڈانسر اور کوریوگرافر کرس جارڈ کے ساتھ رشتہ ازدواجی میں منسلک ہوئی تھی، تاہم ان کی یہ شادی بھی 2003 میں ختم ہو گئی۔ پھر لوپیز نے 2004 میں گلوکار مارکس سے شادی کی، جو 2014 تک چلی اور اس شادی سے ان کے جوڑواں بچے ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بین کی یہ دوسری شادی ہے۔ انہوں نے 2005 میں اداکارہ جینیفر کارنر سے شادی کی تھی، جو 2018 تک چلی اور اس شادی سے ان کے 3 بچے ہیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں اداکارہ بابرہ شریف کے گھر چوری کی واردات ناکام ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بابرہ شریف کے گھر میں چوری کی ناکام واردات کی CCTV ویڈیوز حاصل کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اداکارہ بابرہ شریف کا کہنا ہے کہ 4 نامعلوم چور ماسک پہنے گھر میں گھسے۔ گھر میں لگے سیکیورٹی کیمرہ دیکھ کر چور بغیر واردات گھر سے نکل گئے۔ بابرہ شریف نے مزید بتایا کہ مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ گلبرگ میں درخواست دی گئی ہے۔ روس کی عدالت نے امریکی کمپنی گوگل پر $37 کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ گوگل کی جانب سے روسی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی اور روس میں ممنوع قرار دیے گئے مواد گوگل سے نہ ہٹائے جانے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ روسی قوانین کی خلاف ورزی پر پچھلے سال بھی گوگل پر $12 کروڑ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر گوگل کی طرف سے ابھی کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ بالی ووڈ فلم برما 17 میں عالیہ بھٹ اور رنویر کپور پہلی مرتبہ پردے پر ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ ایک ساتھ ان کی فلم کا پہلا گانا کیسریا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فلم برما 17 کے ہدایت کار ایان مکھرجی کے ہمراہ اپنی آنے والی فلم اور گانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دونوں اداکاراؤں نے کیسریا گانے سے جڑے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ عالیہ بھٹ نے کیسریا کے ساتھ جڑے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے کیسریا ایک ایسا احساس ہے جسے کوئی شخص خوشی یا کسی چیز سے اپنی انتہائی لگاؤ کے وقت محسوس کرتا ہے۔ جب بھی یہ گانا سنتی ہوں تو یہ مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح یہ گانا شائقین کے دلوں کو بھی چھو لے گا۔ رنویر کپور نے کیسریا کی ریلیز کے موقع پر کہا کہ گانے کے ٹیزر سے ہی اس کی تازگی اور خوشبو لوگوں کے دلوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس گانے کی تخلیق میں کردار ادا کرنے والی پوری ٹیم کا شکریہ، جنہوں نے ایسا گانا تخلیق کیا۔ فلم کے ڈائریکٹر ایان مکھرجی نے کہا کہ پریتم ارجیت اور امیتابھ کے ساتھ کیسریا پر کام کرنا ایک یادگار تجربہ ہے۔ پوری دنیا سے پرستاروں نے رنویر اور عالیہ کی محبت کو اس گانے کے ذریعے سیلیبریٹ کیا ہے۔
बॉलीवुड अदाकारा सष्मिता सेन से शादी पर वजाहत के बावजूद जाली खबरें सामने आने पर इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बानी और पहले चेयरमैन ललित मोदी भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। इंस्टाग्राम पर ललित मोदी ने एक तवील पोस्ट की जिसमें दर्ज था कि मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया को मुझे ट्रोल करने का इतना जुनून क्यों है। कोई बता सकता है कि मैंने इंस्टा पर सिर्फ 2 तस्वीरें पोस्ट की और टैग भी सही इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज भी क्रोनोवस्था में जी रहे हैं जहां 2 लोग दोस्त नहीं हो सकते। इनके दरमियान केमिस्ट्री अच्छी हो और वक्त भी मुनासिब हो तो कोई मौजा भी हो सकता है। उन्होंने लिखा कि हमारे मुल्क में हर सहाफी गोस्वामी की तरह बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मशवरा है कि जियो और जीने दो, सही खबरें दो, न कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में झूठी खबरें दो। ललित मोदी ने पोस्ट में अपनी सादगा लिया और इनसे मुतालिक चलने वाली खबरों को भी झूठा करार दे दिया और लिखा कि अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे सराहें, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। आप सब मुझे मफरूर कह रहे हैं और ये बताएं कि किस अदालत ने मुझे मफरूर करार दिया। उन्होंने खुद से मुतालिक लगाए जाने वाले इल्जामात के जवाब में लिखा कि मैं एक सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली और ना ही इसकी जरूरत पड़ी। जब मैंने PCCI में शमूलियत इख्तियार की तो मेरे पास 40 करोड़ थे और जब मुझ पर पाबंदी लगाई गई तो बैंक में 47 करोड़ थे। जाली मीडिया शर्म करो। याद रहे कि इससे कब सष्मिता सेन के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बानी और पहले चेयरमैन ललित मोदी से खामोशी से शादी कर ली है। ताहम उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों बेटियों के हमरा तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोई शादी नहीं हुई, ना ही कोई अंगूठियों का तबादला हुआ है, लेकिन मैं गैर मशरूत मोहब्बत में गिरी हुई हूँ। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने तुर्की में अपनी गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरों के बाद एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने मीडिया पर चलने वाली झूठी खबरों पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। टिकटॉकर ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने शोहर बिलाल शाह के हमरा बैठी हैं। हरीम शाह ने गिरफ्तारी की झूठी खबरों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे बारे में हमेशा गलत खबरें फैलाई जाती हैं। हरीम शाह ने कहा कि मैं अपने हवाले से गर्दिश करती तमाम अफवाहों की तरदीद करती हूँ। इससे कबल फेक खबर आई थी कि मुझे कतर से डिपोर्ट कर दिया गया है। मैं इस वक्त खामोश रही क्योंकि इस किस्म की खबरों पर मैं क्या रद्द अमल दूं। लोग पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन मेरे बारे में गलत खबरें फैलाते हैं। टिकटॉकर ने बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं और ऐसी झूठी खबरों या इन मसाइल के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती। ताहम वहाँ इनका कानूनी तर्जुमान मुनीर अहमद मौजूद है जो इनके तमाम मामलात देख रहा है। हरीम शाह और बिलाल ने पाकिस्तानी सहाफियों से अपील की है कि इनसे मुतालिक गैर मुसद्दिका खबरों को ना फैलाएं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कुछ खबरें खेल के मैदान से। हमारे साथ
वहीं बहुत सी भूली बिसरी कहानियां भी सामने ले आती है। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जो कि है पुरानी दिल्ली में वाक़या मुबारक बेगम मस्जिद की, जिस पर सवाल ये किया जाता है कि क्या पुरानी दिल्ली की ये मस्जिद एक अंग्रेज अफसर की हिंदू बीवी के नाम से मंसूब है। पूना शहर से एक ब्राह्मण खातून दिल्ली आती हैं। वो दिल्ली के सबसे बाअसर सफेद फार्म सरकारी एहलकार की बेगम बन जाती हैं और फिर दिल्ली में उनके नाम पर एक मस्जिद तामीर होती है। ये किस्सा बज़ाहिर अजीब सा मालूम होता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ था। ये मस्जिद पुरानी दिल्ली के इलाके चावड़ी बाजार की तंग गलियों में मौजूद है। 19वीं सदी में तामीर होने वाली ये मस्जिद एक तवाइफ के नाम पर है। इसका असली नाम मुबारक बेगम की मस्जिद है। ये वाज़ेह नहीं कि सन 1800 ये मस्जिद मुबारक बेगम ने खुद तामीर करवाई थी। वो एक बहुत अच्छी खातून थी। मस्जिद किसने तामीर करवाई, ये अभी तक एक सवाल है, लेकिन ये बात यकीनन दुरुस्त है कि किसी तवाइफ की जानिब से मस्जिद तामीर करवाना या उनके नाम पर मस्जिद तामीर होना कोई आम बात नहीं, जबकि उस जमाने में बादशाह, उनकी बीवियां या अशराफिया मस्जिद तामीर करवाते थे। ये बात वाज़ेह है कि उस जमाने में मुबारक बेगम एक बड़ी शख्सियत थी। तारीख उनके बारे में ज्यादा नहीं बताती, लेकिन जो भी तफसीलात मौजूद है वो बहुत दिलचस्प है। उनका नाम मुबारक था और वो दिल्ली में रहती थी। वो एक मराठी थी और पूना से आई थी। कुछ जगहों पर उनका नाम चंपा आया है, लेकिन उसकी तस्दीक के लिए ज्यादा ज़राए मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि चंपा या जो भी उनका नाम था किस तरह मुबारक बेगम बनी। ये लड़की पुणे से सफर करके दिल्ली पहुंची और पुरानी दिल्ली में उनके नाम पर मस्जिद कैसे तामीर हुई, जहां पर मुगल तहजीब का असर नजर आता है। मुबारक बेगम असल में एक हिंदू थीं, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और उनका मुसलमान नाम बीबी मरात मुबारक उन निसा बेगम रखा गया, लेकिन वो मुबारक बेगम के नाम से ही मशहूर हुई। उनकी शादी बरतानिया के पहले रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलूनी से हुई। बाज़ मौरखीन के मुताबिक उन्हें जनरल ऑक्टरलूनी ने बगैर शादी किए ही रखा हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर शाह दोइम का दौरे हुकूमत था और जनरल ऑक्टरलूनी दिल्ली में हुकूमत बरतानिया की जानिब से तैनात किए जाने वाले एहलकार थे। जनरल ऑक्टरलूनी और मुबारक बेगम के ताल्लुकात की नोयत जो भी हो, जनरल की जिंदगी में मुबारक बेगम की बहुत अहमियत थी। मौलवी जाफर मसान ने लिखा है कि मुबारक बेगम डेविड को बहुत अजीज थी। मुबारक बेगम जनरल डेविड ऑक्टरलूनी की 13 बीवियों में से एक थी। वो जनरल के सबसे छोटे बेटे की माँ भी थी। मुबारक और डेविड ने शादी की थी, हालांकि वो जनरल से छोटी थी, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात में वो हावी थी। इसीलिए जनरल ने मुबारक बेगम से होने वाले अपने बच्चों की तरबियत मुसलमान अंदाज से करने का फैसला किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे कहते हैं, बरतानवी और मुगल हलकों दोनों में मुबारक बेगम से नफरत की जाती थी। मुबारक बेगम अपने आप को लेडी ऑक्टरलूनी कहलवाती थी, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था, और वो अपने आप को कुदसिया बेगम, शहनशाह की माँ भी कहलवाती थी, जो मुगलों को पसंद नहीं था। जनरल ऑक्टरलूनी ने एक बाग तामीर करवाकर उसका नाम मुबारक बाग रख दिया। मुगल उस बाग में जाना पसंद नहीं करते थे। वो अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारती थीं। आजकल तवाइफों की मुख्तलिफ नामों से तस्दीर की जाती है, लेकिन मुगल दौर में तवाइफों को उस हद तक बुरा नहीं समझा जाता था। कहा जाता है कि उस जमाने में मुबारक बेगम एक मशहूर नाम था। दिल्ली में अपने दौर का आखिरी बड़ा मुशायरा मुबारक बेगम के महल में हुआ, जिसमें 40 शोरा शरीक हुए, जिनमें से एक मिर्जा गालिब भी थे। अनिरुद्ध देशपांडे कहते हैं कि दिल्ली में अपने क़याम के दौरान जनरल ऑक्टरलूनी ने मुकम्मल तौर पर मुगलों की तहजीब व सकाफत को अपना लिया था, इसलिए उन्हें सफेद फार्म मुगल कहा जाने लगा। ज़ियाउल इस्लाम अपनी किताब विमेन इन मस्जिद में मुबारक बेगम के बारे में जरा मुख्तलिफ राय पेश करते हैं। इस्लाम ने बताया कि ये लड़की जो पहले एक तवाइफ हुआ करती थी, अपने माजी से जान छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और माशरे की अशराफिया में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए पहले उसने एक बरतानवी जनरल डेविड ऑक्टरलूनी से शादी की और उनके मरने के बाद उन्होंने एक मुसलमान सरदार से शादी कर ली। मस्जिद तामीर करवाना भी अशराफिया में शामिल होने की उनकी कोशिशों का एक हिस्सा था। एक तारीखी मौक़िफ़ ये है कि मुबारक बेगम ने ये मस्जिद तामीर करवाई। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उसे जनरल ऑक्टरलूनी ने तामीर करवाकर उसका नाम मुबारक बेगम से मंसूब कर दिया। लेकिन ये मस्जिद यकीनन मुबारक बेगम ने तामीर करवाई और जनरल ने उसके लिए रकम फराहम की। क़ुरून वस्ती के ज़माने में ख़वातीन ने कई मसाजिद और मदरसे तामीर करवाए। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहां की अहलिया ने बनवाई थी, लेकिन ज़ियाउल इस्लाम कहते हैं कि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि फतेहपुरी मस्जिद एक बादशाह की बीवी ने तामीर करवाई थी, जबकि मुबारक बेगम एक तवाइफ थी। मस्जिद की मौजूदा हालत पर नजर दौड़ाएं तो कुछ यूं मंजर सामने आता है। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर लगी हुई तख्ती पर मस्जिद मुबारक बेगम लिखा हुआ है। असली मस्जिद 2 मंजिला है। जमीनी हिस्सा एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है और वहाँ दुकानें हैं। मस्जिद के दाखिली दरवाजे की तरफ जाने के लिए एक तंग गली से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल पर मस्जिद कायम है। वहाँ नमाज के लिए एक हॉल है और 3 गुंबद है।
चंद रोज कबल बारिश की वजह से इनमें से एक गुंबद गिर गया था। मस्जिद की तामीर मुकम्मल तौर पर सुर्ख पत्थरों से हुई है। हाल ही में गिरने वाले गुंबद के टुकड़ों में भी सुर्ख रेत देखी जा सकती है। मस्जिद सन 1823 में तामीर की गई और चंद बरसों में ये अपने वजूद के 200 बरस मुकम्मल करने वाली है। इस हालिया वाक़े के अलावा इमारत को कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा है। गुम्बद के गिरने वाले हिस्सों के अलावा मस्जिद सही सलामत दिखाई देती है। प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे कहते हैं कि पुरानी दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लोग आज भी मुबारक बेगम मस्जिद को तवाइफ की मस्जिद पुकारते हैं, लेकिन कोई भी इस नाम से पुकारने पर अजीब सा महसूस नहीं करता। ये इस मस्जिद का बाकायदा नाम बन चुका है और लोग माजी के इस नाम को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकर सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईदी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिले रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। वेलकम बैक। आपको बताते चलें, श्रीलंका में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस से मसाइल का शिकार हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल टेस्ट में शाहीन अफरीदी को फिटनेस मसाइल दरपेश हैं। तर्जुमान कौमी टीम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फील्डिंग के दौरान शाहीन अफरीदी की टांग में खिंचाव हुआ था, जिसके बाद क्रिकेटर को इब्तदाई तौर पर आइस ट्रीटमेंट दी गई थी। तर्जुमान ने बताया कि शाहीन की टांग में दर्द कम न हुआ तो MRI करवाया गया है, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। तर्जुमान के मुताबिक शाहीन अफरीदी घुटने से नीचे तकलीफ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लीग स्पिनर यासिर शाह ने श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न की मशहूर ज़माना बॉल ऑफ द सेंचुरी की याद ताज़ा कर दी। 4 जून 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने एशियंस टेस्ट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में शेन वॉर्न ने इंग्लिश बैटर माइक को अपनी हैरान कुन लीग स्पिन बॉलिंग से बोल्ड किया था। शेन वॉर्न की गेंद लीग स्टंप पर गिरी, जो हैरान कुन तौर पर टर्न होकर माइक के बल्ले को मस करती हुई ऑफ स्टंप पर जा लगी, जिसके बाद इंग्लिश बैटर भी हैरान रह गए। बादशाह इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया। दूसरी जानिब तकरीबन 29 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लीग स्पिनर यासिर शाह ने गोल में जारी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी से मिलती जुलती गेंद करवाकर श्रीलंकन बैटर कौशल को पेविलियन भेजा। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन श्रीलंकन बैटर कौशल 76 रन पर बैटिंग कर रहे थे कि यासिर शाह ने एक बेहतरीन लीग स्पिन बॉल से इन्हें बोल्ड कर दिया। यासिर शाह की जानिब से मेंडिस को करवाई गई गेंद बज़ाहिर शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी की तरह लेग स्टंप पर पिच होकर बैटर के बल्ले को धोखा देते हुए ऑफ स्टंप पर जा लगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।